Hello everyone, welcome to Stay Update presented by JK Rakhan. So friends, finally the call letter of TGC Technical Graduate Course 133 for SSB interview for all SSB boards for SSB Kapurthala, Bhopal, Bangalore and Allahabad has been uploaded on Indian Army official website. All candidates who are shortlisted under this course TGC 133 needs to download their admit card from the official website of Indian Army. And in the previous video on 7th of May 2021, we had discussed about the official cutoff in order to appear the SSB interview, and all those candidates who have qualified the cutoff that was discussed in the previous video. I hope all those candidates has received the intimation through their registered mail ID and also got the intimation on online portal about the date selection of the SSB interview. And we had also discussed in the previous video how to select your SSB date for the SSB interview. And once the date has been allocated to you, the date of the SSB interview will not be changed. So friends, in this video we will discuss complete details about the SSB interview, that what type of documents are required in order to appear the interview, and lot of candidates are basically confusing about the backlogs, that they have backlog in the 5th semester, 6th semester in their engineering degree. So whether that candidates are eligible to attend the SSB interview or not, and related to the final year candidates also, that final year candidates what type of documents they needs to bring while attending the SSB interview, and related to the COVID-19 certificate, that is RT-PCR certificate related to the Arogya Setu app. So all the details we shall discuss in this video in a very comprehensive manner. So all those candidates who are going to appear in the upcoming SSB interview under TGC 133 course, so this video will be very useful for them in order to understand the basic information and the documents required in order to appear the SSB interview. So friends, firstly we need to discuss that how to download your SSB call letter from Indian Army official website. So firstly friends, you need to come on the Indian Army official website under the section available here, that is downloads. So you need to click on this link, that is the last option on the download. So after clicking on this option downloads, you will be in a position to find out that all the call letter under the 4 SSB boards. So under the SSB Allahabad, you can easily download the call letter for TGC 133 if this board has been allocated to you. You can download their call letter from the first section by clicking on this option, that is download. So for another candidates who got the SSB Bangalore can download their call letter from this section, and remaining candidates who got the SSB board, that is Bhopal, can download their SSB call letter from this section, and remaining is the Kapurthala. Similarly, you can download your call letter from the respective SSB board. So when this is the way to download the call letter of SSB board. Now friends, after downloading the call letter of your specific SSB board, now we shall discuss about the important information that you need to keep in your mind while reporting the SSB board, that what kind of documents are required, the original documents, printout copies, passport size photographs, COVID-19 certificate, Arogya Setu app screenshot, and for the remaining information for final year candidates and the CGPA conversion certificate. So all the details we will discuss in this video. So friends, now we start in a Hindi medium so that each and every candidate can understand through this video in a very effective manner. तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका SSB इंटरव्यू कॉल लेटर है SSB इलाहाबाद बोर्ड के लिए। तो सभी कैंडिडेट्स जो हैं जो SSB इलाहाबाद में अपना SSB इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम कॉल लेटर फ्रेंड्स रहेगा TGC 133 कोर्स के अंडर। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट 2 के अंडर यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपकी SSB इंटरव्यू की डेट जब आपको एलोकेट हो जाती हैं, उसके बाद आप SSB डेट्स को जो है वो
चेंज नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जो एसएसबी इंटरव्यू की डेट्स है वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में चेंज नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी एसएसबी इंटरव्यू की डेट्स के दौरान कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा या फिर कोई आपका एसेंशियल इवेंट है एसएसबी इंटरव्यू की डेट्स के बीच में, तो बिल्कुल आप एसएसबी इंटरव्यू की डेट को फ्रेंड्स चेंज करवा सकते हो। लेकिन जो आपको एसएसबी इंटरव्यू की डेट मिलेंगी वो आप फिर आपकी मर्जी से नहीं मिलेंगी, वो आपको ऑटोमेटिकली एलोकेट की जाएंगी आपके पर्टिकुलर एसएसबी बोर्ड से। तो ये आपको कैसे चेंज करवानी है, आपको डायरेक्टली अपने पोर्टल पे जाना है, वहां पे फीडबैक क्वेरी वाली आपकी सेक्शन रहेगी, वहां पे आपको क्लियरली मेंशन करना है, रोल नंबर मेंशन करना है, रीजन मेंशन करना है कि किस सर्कमस्टेंसेस के अंडर आप अपने एसएसबी इंटरव्यू की डेट चेंज करवाते हो। अगर वो आपके रीजनेबल रहेंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपकी एसएसबी इंटरव्यू की डेट जो है वो चेंज कर दी जाएगी। मैक्सिमम कैंडिडेट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन होती है कि एसएसबी इंटरव्यू की डेट उनकी चेंज होगी या फिर नहीं होगी, जिस वजह से वो अपना एसएसबी इंटरव्यू जो है वो नहीं अटेंड कर पाते हैं। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऐसे ही एसएसबी इंटरव्यू की डेट्स जो है वो चेंज हुई हैं, इसलिए आप भी फ्रेंड्स चेंज करवा सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको कुछ कोविड-19 एडवाइजरी जो है ये फॉलो करनी है। पहला आपको सबसे पहले याद रखना है कि जब आप घर से निकलोगे तो आरोग्य सेतु ऐप पे जो आपका सेल्फ असेसमेंट के बाद स्टेटस आता है यू आर सेफ, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है जब आप घर से निकलोगे एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए। और जब आप एसएसबी बोर्ड में रिपोर्ट करोगे तो ये स्क्रीनशॉट आपने उनको दिखाना ही दिखाना है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स कंटेनमेंट जोन से बिलोंग करते हैं उनको यही प्रेफर किया जाएगा कि वो ट्रैवल ना करें एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए, डायरेक्टली अपने एसएसबी बोर्ड को इंटीमेट कर दें कि जहां से वो बिलोंग करते हैं वो एरिया कंटेनमेंट जोन है, यानी कि वहां पे काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। पॉसिबल नहीं है कि कंटेनमेंट जोन से आप वहां से ट्रैवल करो और एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, क्योंकि फिर ज़्यादा वहां पे चांसेस रहेंगे इन्फेक्शन के। तो आप वहां पे डायरेक्टली उनको इंटीमेट कर सकते हैं, जो आपको प्रोसेस बताई गई है फीडबैक क्वेरी सेक्शन के थ्रू। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक यहाँ पे एफिडेविट भी अपने साथ में लेके जाना है। अगर आपने गलत नाम वहाँ पे मेंशन कर दिया है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में नाम कुछ और है और आपके सर्टिफिकेट पे कुछ हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको एक एफिडेविट और साथ में अगर कोई टैटू आपकी बॉडी पे है तो वो डॉक्यूमेंट भी अपने साथ में लेके जाना है। अगर आप लेके नहीं जाते हो तो आपको वहाँ पे फर्दर स्टेजेस के लिए बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेके जाने हैं, जो कि आपके एक हफ्ते से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 40 कॉपीज आपके पास होनी ही चाहिए। और ध्यान दें कि आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा कि आप बाहर जाके अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनवा के लाएं और फिर फर्दर वहाँ पे प्रोसीड करें। आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा, इसलिए जब आप घर से निकलोगे तो मैक्सिमम 40 कॉपीज अपने लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाएं और उनका बैकग्राउंड बैक साइड पे लाइट कलर होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी आइटम्स, बेडशीट हो गई, पिलो कवर हो गया, जो कि एसेंशियल रहेंगे वहाँ पे स्टे करने के लिए, आपको अपने साथ में लेके जानी ही जानी है। और ध्यान दें कि अगर आप वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हो स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, उसके बाद आपका फर्दर मेडिकल होगा, तो मैक्सिमम वहाँ पे 2 हफ्ते के स्टे के लिए आपको सफिशिएंट क्लॉथिंग, एडिक्वेट क्लॉथिंग जो है वो वहाँ पे लेके जानी है। उसके बाद आपके यहाँ पे एसेंशियल जो आइटम्स रहेंगी, पर्सनल आपका फेस मास्क आपके पास होना चाहिए, फेस शील्ड आपके पास होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए। ये कोई भी आइटम आपको जो है एसएसबी बोर्ड के द्वारा नहीं दी जाएगी, ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें। उसके बाद अपने साथ आप कोई भी ड्रग लेके नहीं जाओगे, मेडिकेशन कोई भी साथ में लेके नहीं जाओगे। अगर आपको वहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो मेडिकल कंसल्टेशन फैसिलिटी जो है वो आपके पर्टिकुलर एसएसबी बोर्ड में अवेलेबल रहेगी। आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता कि आपको वहाँ पे कोई ड्रग साथ में लेके जाना है। कोई भी मेडिसिन आप अपने घर से नहीं लेके जाओगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका जाता है आरटीपीसीआर रिपोर्ट, जो कि आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन आपका एक टेस्ट आता है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये आरटीपीसीआर रिपोर्ट फ्रेंड्स आपको जो है वो लेके जानी है अपने साथ में, और इस रिपोर्ट पे आपकी जो रिजल्ट है यानी कि जो आउटकम है वो कोविड नेगेटिव होना चाहिए। तो जिस दिन आप घर से निकलोगे और जिस दिन आपको वहाँ पे रिपोर्ट करोगे, यानी कि वहाँ पे रिपोर्ट करने से पहले यानी कि 72 और यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर आपकी वो रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर उससे पहले होती है तो आपको फिर भी वहाँ पे अपीयर नहीं होने दिया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू में। जिस दिन आप रिपोर्ट करोगे उसके विद इन 72 आवर्स यानी कि 3 दिन
पहले की आपकी जो है वो रिपोर्ट होनी चाहिए, 3 दिन से पहले की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे नो रिस्क सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए रहेगा जो कैंडिडेट माइनर हैं, उनको अपने पेरेंट्स से डिक्लेरेशन करवा के लेनी है नो रिस्क सर्टिफिकेट के अंडर। नीचे मैं आपको कुछ अपेंडिक्स दिखाऊंगा, ये अपेंडिक्स आपको अपने डिक्लेरेशन करनी है। जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर में है कि उनका रिजल्ट जो है वो इस डेट तक निकल जाना चाहिए, या फिर जो कैंडिडेट्स कन्वर्जन आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा जिसमें आपकी CGPA जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट की जाती है, वो भी आपको अपने साथ में लेके जाना है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहाँ पे नीचे फ्रेंड्स दिखाऊंगा। उसके बाद क्वारंटाइन पॉलिसी आपको पर्टिकुलर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस स्टेट में आप जाओगे तो वो आपको एज कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो वहाँ पे फॉलो करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपने अपने साथ लेके जाने ही जाने हैं। यदि आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी एलो नहीं किया जाएगा SSB इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जितने भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो आपको अपने साथ ओरिजिनल भी साथ में लेके जाने हैं, और उनके मिनिमम आप 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अपने साथ लेके जा सकते हो, यानी कि उनकी आपको जीरोक्स कॉपी निकालनी है, फोटो कॉपी निकालनी है, और उस पर सेल्फ अटेस्ट खुद वहाँ पर साइन करने हैं सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट की जो आपके पास कॉपी होंगी। और साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल उसकी सिर्फ और सिर्फ आपको एक कॉपी ही लेनी है। उसके राइट साइड अपर कॉर्नर वाली साइड वहां पे आपकी स्पेस अवेलेबल होगी, वहां पे आपको अपना फोटो भी मेंशन करना है और वहां पे सेल्फ अटेस्ट करना है साइन करके। तो ध्यान दें कि ये वाला जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको कैसे डाउनलोड करना है ये हमने पहले से वीडियो में डिस्कस कर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा, वहां से आप समझ लें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म TGC 133 कोर्स के अंदर आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको ओपन करना है। तो सबसे पहला आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे फ्रेंड्स रहेगा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट। कुछ स्टेट बोर्ड में क्या आपका रहता है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट सेम रहता है, तो वो आपका कंसिडरेबल रहेगा। अदरवाइज आपके पास मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आपका कंसिडर किया जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ को डिटरमाइन करने के लिए, आपका नाम, आपकी मदर का नाम, आपके फादर का नाम को डिटरमाइन करने के लिए। ये आपका ऑनलाइन फॉर्म के साथ मैच करनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 12th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स ने 12th पास नहीं किया यानी कि डायरेक्टली अपना 10th के बाद डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की सारी DMCs आपके पास होनी चाहिए सेमिस्टर वाइज। उसके बाद अगर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो इंजीनियरिंग डिग्री आपको ओरिजिनल भी साथ में लेके जानी है और उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड भी साथ में लेके जानी है। और अगर आपको अभी डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविजनल डिग्री आप अपने साथ में लेके जाओगे। उसके बाद जो इंजीनियरिंग डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर MC वाले हैं या फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वाले हैं, इन सभी कैंडिडेट्स को जो है अपनी सारी सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो साथ में लेके जाना है जब वो SSB इंटरव्यू में अपीयर होंगे। अगर वो अपनी मार्कशीट नहीं लेके जाते हैं, सपोज वो छुपाते हैं कि उनको बैकलॉग है 6th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, और वो वहाँ पे कहते हैं कि उनके पास 5th सेमेस्टर के DMC नहीं है, तो उनको बिल्कुल वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा SSB बोर्ड से। आपको अपीयर वहाँ पे नहीं किया जाएगा फर्दर स्टेजेस के लिए। तो ये फ्रेंड्स आप अपने माइंड में ध्यान रखें। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मास्टर डिग्री कर रहे हैं किसी और फील्ड में, तो उनके सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अगर इंस्टीट्यूट ने हेल्ड किए हैं तो उन कैंडिडेट्स को एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो अपने कंसर्न इंस्टीट्यूट से बनवाना है। और सारे जो आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट हैं उनकी आपको जो कॉपीज़ हैं वो सारी सर्टिफाई करवानी है अपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से। उसके बाद जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर वाले हैं उनको एक डिक्लेरेशन यहाँ पे करवानी है अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से कि उनकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी 1 जुलाई 2022 तक। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स का कंप्लीट हो गई है उनकी डिग्री, फॉर एग्जांपल जिन कैंडिडेट्स ने MSc बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट या फिर BTech कंप्लीट कर ली है अपनी डिफरेंट ब्रांचेस में, तो उनके पास जो है CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिकॉज मैक्सिमम आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको मार्क्स अवार्ड करती हैं CGPA के बेसिस पे, तो आपकी जो CGPA है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपका इस सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। और ये फ्रेंड्स आपका सर्टिफिकेट आपके कंसर्न्ड जो एग्जामिनेशन के कंट्रोलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, या फिर आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी के डीन हैं, या फिर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनसे आपका ये
डिक्लेरेशन होनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में लेके जाने हैं। उसके बाद जो आपका लास्ट में आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बच जाता है जाना है, ये जो आपके सारे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दिए रहे हैं, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कोई भी साथ में लेके जा सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ ओरिजिनल में लेके जाने हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने पहले कोई एसएसबी इंटरव्यू अटेम्प्ट किया था तो वहाँ पे उनको यहाँ पे अपेंडिक्स एच आपका एक डॉक्यूमेंट रहेगा, यहाँ पे उनको मेंशन करना है कि एसएसबी इंटरव्यू उन्होंने कौन कौन सी एंट्रीज के अंडर पहले अटेंड किया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, अगर किसी कैंडिडेट की अप टू 6 सेमेस्टर तक बीटेक के केस में और एमएससी के केस में अप टू 2nd सेमेस्टर तक, या फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के केस में अप टू 8 सेमेस्टर तक कोई भी बैकलॉग है तो उनको वहाँ पे अपीयर नहीं किया जाएगा, नहीं अलो किया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो इस बात का खास ध्यान रखें, अगर कोई भी आपको बैकलॉग है किसी भी सेमेस्टर में तो आप एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए ना जाएं। आपका वहाँ पे बिल्कुल टाइम भी वेस्ट होगा और आपका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होगा अगर वहाँ पे आप जाते भी हो और वहाँ पे आपको फिर परमिट भी नहीं किया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखनी है एसएसबी इंटरव्यू में जाने से पहले। अब आपके कुछ यहाँ पे अपेंडिक्स रहेंगे, इसमें कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच रहेंगे, इनका अपने प्रिंट आउट निकालना है और डिक्लेरेशन करके अपने साथ में लेके जाने हैं। ये आपकी सारी परसेंटेज है जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी पिछली वीडियो में कि डिफरेंट ब्रांचेस के अंडर आपका क्या कट ऑफ रहा है एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। उसके बाद और यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दें कि जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, इस कमीशन के अंडर यानी कि परमानेंट कमीशन के अंडर उनको ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। तो उनको ट्रैवल अलाउंस अप्लाई करने के लिए ट्रैवल फॉर्म जो है वो यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और उसको फिल करेंगे। और साथ में उस ट्रैवल अलाउंस फॉर्म के साथ उनको 2 डॉक्यूमेंट और भी अटैच करने हैं। जो उनकी टिकट रहेगी उसकी कॉपी अटैच करनी है और जो उनकी बैंक पासबुक है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, जो फ्रंट पेज रहता है जिसमें आपका कंप्लीट क्लियरली अकाउंट नंबर मेंशन रहता है, या फिर कैंसल्ड चेक अपना जो है वो अटैच करना है। अप टू 3rd टायर जो आपका किराया रहता है, शॉर्टेस्ट रूट आपके घर से लेकर और एसएसबी बोर्ड के बीच में, वो आपको फेयर जो है वो फ्रेंड्स पे किया जाएगा आपके अकाउंट में। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखें, जो पहली बार कैंडिडेट्स इस कमीशन के अंडर एसएसबी इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो उनको ट्रैवल अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपकी पर्सनल आइटम्स रहेंगे जो आपको अपने साथ लेके जाने हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पे इंटरव्यू में अपीयर होंगे, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर डिफरेंट स्टेजेस होंगी, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर क्लॉथिंग जो है वो वहाँ पे ज़रूरी चाहिए होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि सारे ये वाले जो आपके आइटम्स है ये आपको अपने साथ में लेके जाने हैं। जो आपके स्टेशनरी आइटम्स रहेंगी, आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, आपका रेजर हो गया, A4 शीट्स होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ में लेके जानी हैं जब आप वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। तो ये फ्रेंड्स आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका रहेगा सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर आपकी बॉडी पे कोई टैटू है तो आपको यहाँ पे वो डिक्लेयर करना है, और यदि आप किसी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसमें आपका वो टैटू जो है वो रिक्वायर्ड रहता है, तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स वो डिक्लेरेशन देनी है। तो सबसे पहला यहाँ पे अपेंडिक्स ए में आपका सर्टिफिकेट रहेगा, नो रिस्क सर्टिफिकेट। ये उन कैंडिडेट्स को करना है जो कैंडिडेट्स माइनर हैं, वो अपने पेरेंट्स से डिक्लेरेशन करवाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं जो कैंडिडेट्स हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, अपनी मास्टर डिग्रीज कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, जिनके सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट हेल्ड किए हुए इंस्टीट्यूट ने, तो उनको सारी अपनी जो मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, उनकी कॉपीज जो है वो अटेस्ट करवानी है उनके कंसर्न इंस्टीट्यूट से, और ये वाला फॉर्म भी जो है वो डिक्लेयर करवाना है अपने कंसर्न इंस्टीट्यूट से। उसके बाद अपेंडिक्स सी, जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में अभी स्टडी कर रहे हैं, जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, उनको अपने कंसर्न इंस्टीट्यूट से जो है वो ये वाला डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करवाना है, वेरीफाई करवाना है कि उनको 1 जुलाई 2021 तक जो है वो कंप्लीट रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उनकी पर्टिकुलर डिग्री का। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे CGPA जो परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, जिन कैंडिडेट्स की ऑलरेडी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, उनको यहाँ पे ये डिक्लेयर करवाना है अपने कंसर्न इंस्टीट्यूट से। और ध्यान रखें कि अगर आपकी DMC यानी कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दिया गया है, अगर उसकी बैक साइड पे वहाँ पे मेंशन है क्लियरली आपका CGPA कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है CGPA को
परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको इस डॉक्यूमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहे। सिमिलरली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट साथ में उनको लेके जाना है। अगर DMC के पीछे मेंशन्ड है तो उसकी रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स नहीं रहेगी। सिमिलरली आप यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे आओगे तो आपका यहाँ पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये सारे फिलअप करने हैं। यहाँ पे आपको अपेंडिक्स G भी यहाँ पे फिल करना है कि आपकी कोई भी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन ID जो है वो जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं बनी चाहिए। आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही रजिस्ट्रेशन ID होनी चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर कोई है तो आपको यहाँ पे वो डिक्लेयर करनी होगी। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स ने पहले SSB इंटरव्यू अटेम्प्ट कोई किए हैं तो उनको सारी डिटेल अपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैकलॉग से रिलेटेड भी डिक्लेरेशन करनी है कि आपकी कोई भी बैकलॉग जो है वो नहीं होनी चाहिए प्रीवियस सेमेस्टर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका लास्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है आपकी ट्रैवल अलाउंस। तो ये जो फ्रेंड्स आपका अपेंडिक्स K के अंडर डॉक्यूमेंट है, जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम जाएंगे SSB इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, वो इसका प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और इसको फिल कर लें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं वो मैं आपको पहले ही फ्रेंड्स यहाँ पे बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट SSB इंटरव्यू TGC 133 के अंदर जो कैंडिडेट्स अपीयर होने के लिए जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको साथ में लेके जाने हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उनको अपने माइंड में रखनी है जब वो SSB इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, ताकि उनको SSB इंटरव्यू देते दौरान, ताकि कैंडिडेट्स को SSB इंटरव्यू के दौरान फ्रेंड्स कोई भी परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी रिमेनिंग बच जाती है तो आप डायरेक्टली फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।